Good morning, students. Due to COVID-19, our board has decided that we are going to continue our study using online methodology. So you all have to stay at home and be with us using online. So first of all, you all have to take care of yourself because corona is spreading dramatically in entire world. You have to follow the guidelines provided by our Punjab government by Fateh Mission. They are saying that you have to wear mask at any place where there is gathering. So you have to follow all those approaches so that you all can be safe at home. So moving forward, I would like to present that I am going to teach you microprocessor. So we are going to start with chapter 1 of microprocessor. Before going forward, I would like to show you the syllabus of microprocessor, which is like this. You can see this is the syllabus of microprocessor. This is the outcome. You will come to know about 8085, 8086. You will learn machine language. You will able to write and execute and debug some assembly language programming. So interface various peripheral devices. You will learn all these things while this subject. We are able to see that we are having chapter 1, which is evolution of microprocessor. In this chapter, the main topic is like typical organization of microcomputer and functions of its various blocks, microprocessor, its evolution, function, impact of society, and so on. So this topic we are going to consider in today's lecture. So we are having near about 9 chapters, and this is the list of the practical which we are going to perform using online methodology. We are going to use emulator which can help you to know about microprocessor. So moving forward to our presentation, this is our presentation, chapter 1, evolution of microprocessor. First of all, before going to microprocessor, we will just have a look on what is digital computer. As we all know about digital computer, but we will try to understand basic concepts so that we can understand what is microprocessor. We are having digital computer like this. A digital computer can be considered as a digital system that perform various computational tasks. मीन्स डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो बेसिकली कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म करता है. अब नाम डिजिटल है तो ऑब्वियस है डिजिटल टास्क परफॉर्म करेगा. सी द डिजिटल कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर्स सिस्टम विच हैज 2 डिजिट्स. नंबर 1 इज 0 एंड नंबर 2 इज 1. सो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, जिसमें 0 एंड 1 हमारे पास 2 बिट्स अवेलेबल होती हैं. और a binary digit is called bit. बिट हम जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा होता है, बिट होता है, राइट. तो 0 और 1 की फॉर्म में डिजिटल कंप्यूटर इनपुट लेता है. सो फर्दर मूविंग ऑन, ए कंप्यूटर सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू 2 फंडामेंटल एंटिटीज. हमें पता है कंप्यूटर 2 ही एंटिटीज से बनता है. नंबर 1 इज हार्डवेयर एंड नंबर 2 इज सॉफ्टवेयर. 2 एंटिटीज हैं. कौन सी है, पहली है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर. अब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है उसको डिस्कस करें. हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हम बेसिक डेफिनेशन. सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. सो डेफिनेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं. द हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस दैट कंप्राइज द फिजिकल एंटिटी ऑफ द डिवाइस. एज वी सी हमारे पास हार्डवेयर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो एक फिजिकल एंटिटी होते हैं. बेसिकली फिजिकल एंटिटी क्या होता है, बेसिकली जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसको हम टच करके चेक कर सकते हैं. और वहीं अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस and data that the computer manipulates to perform various data processing tasks. अब सॉफ्टवेयर के लिए हमने फिजिकल एंटिटी वर्ड नहीं यूज किया. ऑब्वियस है सॉफ्टवेयर को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, तो फिजिकल एंटिटी नहीं है. तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस
एंड डाटा का कम्बिनेशन है। मीन्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा का कम्बिनेशन कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है जो क्या कर रहा है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, ऑडियो प्ले कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो कैसे करेगा? वो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस जब इकट्ठे परफॉर्म होती हैं तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। जो कंप्यूटर होता है वो मैनिपुलेट करता है वो इंस्ट्रक्शंस को और उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली जो हमें रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर का हमें कॉन्सेप्ट यही है कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, वो बाइनरी की फॉर्म में इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें एक कंप्यूटेशनल रिजल्ट की फॉर्म में आउटपुट दे देता है। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो हमें डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। हम चेक कर सकते हैं, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है, और ये सीपीयू को फर्दर एलैबोरेट किया जा सकता है एक बड़े पार्ट में। हम सीपीयू को एक डिवाइस नहीं मानते, हम सीपीयू इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेज, राइट। सो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट प्रोवाइड की जाती है। लेट अस सपोज इनपुट किस फॉर्म में जा रही है, ए फॉर्म में जा रही है। मैंने ए प्रेस किया, अब इनपुट क्या होगा, ए जो प्रेस हुआ, ए डिवाइड जो कन्वर्ट होगा बाइनरी में, राइट। ऑब्वियस है डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी इनटेक करता है तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होकर किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। नंबर 1 इज ALU, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक होता है CU, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। यूजुअली सीपीयू में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ALU जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक है CU जो कंट्रोल करता है सभी को, राइट। तो सीपीयू क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी परफॉर्म होने को आया, अगर नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इनपुट को जो ली है इनपुट, उसको अगर मेमोरी में सेव कराना है तो वो नीचे मेमोरी में सेव करा देगा, फर्दर वो आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ये बेसिकली टास्क है। जो ए इनपुट हुआ वो पहले बाइनरी की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में सीपीयू के पास जाएगा, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, मेमोरी में सेव करेगा और फर्दर आउटपुट करने के टाइम दोबारा उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो हमारा ए बनता है, राइट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर का है। सो फर्दर मूव करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है। नाउ व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट is called microprocessor। मीन्स जो पूरा सीपीयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जब ये सारा एक पर्टिकुलर आईसी के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है उसे हम बोल देते हैं माइक्रोप्रोसेसर। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है माइक्रोप्रोसेसर। कहीं भी पूछा जाए आप ये डेफिनेशन मेंशन कर दो, क्या जो सीपीयू है उसको एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर जब अगर हम जनरली बात करें तो सिंगल इंटीग्रेटेड चिप की क्या मतलब है, तो वो है कि एक चिप के अंदर ही जो सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स हैं वो इकट्ठे लगा दिए जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं माइक्रोप्रोसेसर। तो माइक्रोप्रोसेसर को डिटेल्ड में देखें तो इट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, एक्सेप्ट binary data as input and processes data according to those instructions and provide results as output, right। तो ये थोड़ा सा elaborate definition होगी प्रॉपरली माइक्रोप्रोसेसर की क्या है। हमारे पास प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है, हम माइक्रोप्रोसेसर को प्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मल्टीपर्पज क्या है, एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है माइक्रोप्रोसेसर। क्लॉक ड्रिवन, इसके अंदर क्लॉक लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। रजिस्टर बेस्ड, इसके अंदर रजिस्टर्स हैं जिसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं। डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, आगे उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम जब बेसिकली ये वर्ड हर जगह पर देखते हैं जहाँ पे कंप्यूटर या कंप्यूटर के रिलेटेड डिवाइस को एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स ये एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके चलती है, राइट। दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन, ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, कहाँ से, स्टोरेज से भी कर सकती है, इनपुट से भी कर सकती है, फिर फर्दर उसको प्रोसेस करके यूजफुल आउटपुट जो हमें होती है वो प्रोवाइड करता है। सो ये है माइक्रोप्रोसेसर हमारा। माइक्रोप्रोसेसर की हम थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। अब हमने पढ़ा था सीयू, जब सीपीयू है उसके सारे कंपोनेंट एक चिप पे लगा दिए, तो कुछ इस तरीके से सारे कंपोनेंट एक चिप पे फिक्स किए हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा ALU। ALU क्या है, ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
राइट, हमें पता है ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरे लॉजिकल ऑपरेशन। राइट, तो अकम्युलेटर, एक अकम्युलेटर है, ये बेसिकली एक रजिस्टर होता है जिसमें डाटा को सेव किया जाता है। जनरल पर्पज रजिस्टर है, ये एक ऐसा रजिस्टर, इसके अंदर काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, जिनमें डाटा को सेव किया जाता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है जो बेसिकली मेनली कंट्रोल करता है पूरी जो वर्किंग है उसको। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर है, इसको डिटेल्ड में हम समझेंगे माइक्रो कंट्रोल जो हमारा अगर माइक्रो कंप्यूटर है उसमें। राइट, तो नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। अब हमने पढ़ा बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल इनपुट ले रहा है और उसको एक आउटपुट में जनरेट कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जब हम सीपीयू को एक चिप में इंटीग्रेट कर देते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये वो दोनों डेफिनेशन को क्लब करके कुछ बनेगा। तो हमारा ये डेफिनेशन बन रही है, व्हेन सीपीयू ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर में सीपीयू था उसको इज replaced with microprocessor, it is called micro computer. मीन्स जो सीपीयू यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर में पढ़ा था, हम एक डिजिटल कंप्यूटर का डायग्राम देखें तो यहाँ पर सीपीयू है, इस सीपीयू को जब माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया गया तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि ये सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन है माइक्रो कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो हमें माइक्रो कंप्यूटर को अच्छे से समझना है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जब हम सीपीयू डिजिटल कंप्यूटर के को रिप्लेस कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ तो वो बन जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कर दिया इनपुट माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट मेमोरी। मीन्स अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी का यूज करेगा, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में जनरेट कर देगा। राइट, तो ये हमारा क्या बन गया, माइक्रो कंप्यूटर। सो फर्दर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर चेक करते हैं। ये थोड़ा सा अब इलेबोरेशन दी है कि माइक्रो कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है और हर एक कंपोनेंट का काम क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट एएलयू, हमने डिटेल में नहीं देखा था, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे एएलयू कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे जो ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे हो जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। मीन्स जो माइक्रो कंप्यूटर है वो ये वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फर्दर लॉजिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे पास, एंड, और, नॉर, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेशन हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अकम्युलेटर। अकम्युलेटर क्या है, इट इज ए रजिस्टर है, मीन्स मतलब डाटा सेव करता है अपने अंदर। राइट, तो एक स्पेसिफिक बिट का रजिस्टर होगा। हम डिटेल्ड में फर्दर आगे पढ़ेंगे कितने बिट का रजिस्टर होता है अकम्युलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक रजिस्टर है एंड इट्स इज पार्ट ऑफ एएलयू। ये एएलयू का एक पार्ट ही है हमारा जो अकम्युलेटर है। राइट, एंड इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द रिजल्ट टेम्परेरली फॉर एएलयू ऑपरेशन। अकम्युलेटर क्या कर रहा है, अपने अंदर रिजल्ट्स को स्टोर कर रहा है टेम्परेरली जो भी एएलयू परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल एएलयू के पास कोई ऑपरेशन आया, लेट अस सपोज कोई एक एडिशन का ऑपरेशन आया जो हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, 5 + 3 + 2। हमारे पास एएलयू के पास ये ऑपरेशन आ गया 5 + 3 + 2। अब क्या होगा, 5 + 3 करने के बाद हम उसके बाद 8 आया। राइट, तो अब वो 8 को, या अगर जनरली बात करें कि 8 को वो अकम्युलेटर में स्टोर करके रख सकता है क्योंकि टेम्परेरली हमें 8 चाहिए। उसके बाद वो 5 और 3 वो पहले फेच करेगा, उसका आंसर आया 8, उसको 8 को अकम्युलेटर में स्टोर कर देगा, फिर वो फेच करके आएगा 2 को, फिर 2 को 8 के साथ प्लस करेगा और हमें जो डिजायर आउटपुट होगी वो जनरेट कर देगा। कुछ इस तरीके से अकम्युलेटर एक टेम्परेरी रजिस्टर का काम करता है जो किसी तरह का भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जनरली अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये क्या है, जब हमें डाटा थोड़ा एक्सेस में हो गया और डाटा चाहिए और डाटा स्टोर करने के लिए चाहिए तो हम क्या करते हैं, कुछ डाटा मेन डाटा अकम्युलेटर में स्टोर कर लेते हैं और जो हमारा बाकी डाटा रह जाता है वो हम जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। सो यहाँ पर है दीज रजिस्टर स्टोर डाटा टेम्परेरली, मतलब ये भी टेम्परेरली डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है अकम्युलेटर को, उसके बाद जो डाटा आता है वो जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। फर्दर हमारे पास है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इट
It provides proper synchronization between the various sections of computer, or in simple word, it provides control over the entire functioning of the computer system. टाइमिंग एंड कंट्रोल्स जो हमारा यूनिट है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना और टाइमिंग में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, मतलब कि वो सिंक्रोनाइज होके आपस में अच्छे तरीके से काम कर सकें। ऐसे ना हो ALU को कोई काम करना है, उसको एक कंप्यूटर में सेव कराना है, कंप्यूटर कहे मैं सेव नहीं कर सकता, कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, उसको टेक केयर करता है कौन? करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ये जो हमारा डायग्राम है इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का भी ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं। एक प्रॉपर है जो माइक्रो कंप्यूटर में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, तो भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को CPU की जगह पे रखने का नाम है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है तो अब भी हम माइक्रो प्रोसेसर का ये सारा सिनेरियो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली था अभी तक का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फिर हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जो है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। सो ये काफ़ी सारे नाम हैं, ये हमें अच्छे से क्लियर होंगे तभी हम फर्दर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ए माइक्रो प्रोसेसर, अब ये भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ रिलेट हो रहा है। ए माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन टू कंट्रोल सर्टेन प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो कंट्रोलर। अब एक माइक्रो प्रोसेसर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो कोई सर्टेन प्रोसेस ही कर पाए, तो उसे हम बोल देते हैं माइक्रो कंट्रोलर, राइट। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या हुआ? मीन्स कोई ऐसा डिवाइस जो कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना हुआ है। वो कोई भी टास्क हो सकता है, वो किसी को सेंस करना हो सकता है, वो किसी तरह की एक मशीन हो सकती है जो एक स्पेसिफिक टास्क कर रही है, चाहे वो वॉशिंग का हो, चाहे वो किसी और तरीके का हो, चाहे वो ATM मशीन हो। मीन्स जहां पर एक ही टास्क करने के लिए मशीन बनाई गई है उसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोल देते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीजें हैं? इन अदर वर्ड्स, ए माइक्रो कंट्रोलर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच MPU, अब MPU की फुल फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, राइट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। उसके बाद उसके अंदर है मेमोरी, IO इंटरफेसिंग मीन्स इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, एंड सम पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज ED कन्वर्टर आर फैब्रिकेटेड इन सिंगल चिप, मतलब एक चिप पे ये सारी डिवाइसेस लगाई गई हैं इस तरीके से कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो सके। इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। अब यूजुअली हमें एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं कि डिफाइन करो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, डिफाइन करो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, डिफाइन करो माइक्रो कंट्रोलर क्या है। कुछ डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब लेट अस सपोज डिफरेंस पूछा जाए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। अगर माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस पूछा जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो कंप्यूटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हम डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। सो आगे बढ़े हमारे पास, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो प्रोसेसर कैसे कैसे आया, क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा इनके जो हमारे नाम हैं वो हमें अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। So we can categorize the microprocessor according to the generation or according to the size of microprocessor. Basically microprocessor को size से determine किया जाता है। For example 4-bit microprocessor, 8-bit microprocessor, 16-bit microprocessor, 32-bit microprocessor, 64-bit microprocessor and so on. Right? तो मतलब कितने बिट का माइक्रोप्रोसेसर। अब इसका मतलब क्या? बिट, फॉर एग्जाम्पल 4-bit माइक्रोप्रोसेसर, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ वो माइक्रोप्रोसेसर एक टाइम पे 4 बिट्स पे काम कर सकता है। 8-bit माइक्रोप्रोसेसर वो एक टाइम पे 8 बिट्स पे काम कर सकता है। अब ऑब्वियस है, एवोल्यूशन अगर हम चेक करें तो सबसे पहले कौन सा माइक्रोप्रोसेसर आया होगा? 4-bit का माइक्रोप्रोसेसर आया होगा। उसके बाद कौन सा आया होगा? 8-bit का आया होगा। उसके बाद कौन सा आया होगा? 8-bit के बाद हमारे पास 16-bit का माइक्रोप्रोसेसर आया होगा, फिर 32-bit का माइक्रोप्रोसेसर आया होगा, फिर 64-bit का माइक्रोप्रोसेसर आएगा। ऑब्वियस है एवोल्यूशन ऐसे ही हुई होगी, ऐसे तो नहीं हुआ होगा सबसे पहले 64 का आ गया फिर 8 का आ गया। नो, नॉट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि बिट्स बढ़ रही हैं, माइक्रोप्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ रही है, तो वो टाइम के साथ ही बढ़ रही है। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर है जो है 4-bit माइक्रोप्रोसेसर। वो 4-bit का माइक्रोप्रोसेसर है
The first generation microprocessor were introduced in year of 1971 to 72, मतलब 1971 के पास ये इंट्रोड्यूस हुआ। यूजुअली इसे किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया? इंटेल ने इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया गया इंटेल 4004। इट वॉज नेम्ड इंटेल 4004 सिंस इट वॉज ए 4-bit प्रोसेसर। क्यों दिया गया? ऑब्वियस है 4-bit का प्रोसेसर था, इसलिए इसको 4004 नाम दे दिया गया। इट वॉज ए प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप। अब जनरल सी बात है, माइक्रो प्रोसेसर है, हमने स्टार्टिंग में माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन देखी है कि एक सिंगल चिप पे सारा कुछ, जब प्रोसेसर सीपीयू का कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑब्वियस है ये एक प्रोसेसर होगा जो सिंगल चिप पे होगा। इट कुड परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बुलियन और बुलियन एंड सो ऑन, राइट। तो ये ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता था। ये सबसे पहला कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, जो कितने बिट का था? 4-bit का। इसका कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था? इंटेल 4004। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 8-bit माइक्रो प्रोसेसर। अब ये क्या है? द सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस इन 1973 अगेन बाय इंटेल। फिर इंटेल ने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया। इट वॉज ए फर्स्ट 8-bit माइक्रो प्रोसेसर विच कुड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन 8-bit वर्ड। मतलब अब 8 बिट का जो नंबर है उस पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रही थी। जो पहले था वो कितने बिट पे कर रहा था? 4-bit पे कर रहा था। अब कितने बिट पे कर रहा है? 8-bit पे कर रहा है। तो इसका नाम क्या है? इट वॉज इंटेल 8008। नाम कुछ इस तरीके से रख रहे हैं, जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है उतने बिट का उसका नाम दे देते हैं 8008। एंड another improved version was Intel 8088। एक और इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला गया जिसको 8088 से रिप्रेजेंट किया गया। सो ये हमारे 2 जनरेशन हो गए माइक्रो प्रोसेसर की एवोल्यूशन में। पहला आया 4-bit का, फिर आया 8-bit का। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आया जिसको नाम दे दिया गया 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। सो वो कौन सा था? द थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन 1978 वर रिप्रेजेंटेड बाय इंटेल्स 8086, 80286 which were 16-bit processor with a performance like मिनी कंप्यूटर। ये एक मिनी कंप्यूटर जैसी परफॉर्मेंस दे रहे थे। 16-bit के प्रोसेसर थे, इनको नाम दिया गया 8086, 80286। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सेकंड वर्जन, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन था जो वो 32-bit था। यहाँ जब 16 से 32 आए, ये कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गए, बेटर हो गए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब एक टाइम पे 32 बिट्स पे काम होगा तो उतना ही वो बेटर परफॉर्म करेगा। Several different companies introduced the 32-bit microprocessor। अब इंटेल के अलावा और भी कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कर दिए, बट द मोस्ट पॉपुलर वाज इंटेल 80386, राइट। काफी सारी कंपनियों ने बनाया, बट फेमस किसका हुआ? अगेन इंटेल को हुआ, जिसको नाम दिया गया 80386 माइक्रोप्रोसेसर, राइट। तो फर्दर हमारे पास 5th जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर आया जो बेसिकली आजकल भी यूज में आता है। तो ये माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का था? 64-bit का था। From 1995 to now we are in 5th generation। अब तक हम 5th जनरेशन में हैं। After 80856 Intel came out with new processor, namely Pentium processor followed by Pentium Pro CPU, which allow multiple CPUs in a single system to achieve multiprocessing। Other improved 64-bit processor are Celeron, Dual, Quad, Octa-core processors and so on, राइट। आजकल हेक्सा कोर भी हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की जो एवोल्यूशन है वो चली। जो 5th था 64-bit, वो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ में आया, उसमें काफ़ी चेंजेस हुई। 64-bit में कुछ इस तरीके का बनाया गया जिसमें डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर लगा दिए गए, ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर एक ही कंप्यूटर में लगा दिए गए। जो हम इसको देख रहे हैं ड्यूअल कोर जो है वो बेसिकली 2 प्रोसेसर हो गए, क्वाड में 4 हो गए, ऑक्टा में 8 हो गए, हेक्सा में 16 हो गए। मतलब डिफरेंट प्रोसेसर, जितने प्रोसेसर लगाएंगे उतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और वो टोटल 64 बिट्स को वन टाइम पे प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो ये हमारा टोटल जो था सिनेरियो आज का जो हमने पढ़ना था। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज फिनिश होता है। सो अब हमने क्या चेकआउट करना है बिफोर नेक्स्ट लेक्चर? हमें पता होना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हमें पता होना चाहिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है। अगर ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे पहले ही, तो हमें जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, उसमें पढ़ने में ईजिली रहेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट है, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर का सोसाइटी पे क्या रोल है, माइक्रो प्रोसेसर सोसाइटी पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारा जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में चेकआउट करेंगे। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप डायरेक्टली मेरे से
कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ आप कमेंट की फॉर्म में क्वेरी को पूछ सकते हो, या यू कैन डायरेक्टली आस्क मी with any mean of medium. So that was enough for today's lecture. Thank you class.